Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study about power quality problems, how we can mitigate these problems. So we need to study about mitigating techniques. Okay, to compensate the power quality problems, we have studied. We have voltage based problems. We have current based problems. Um, so starting with this, so in this mitigation techniques, we will study about passive shunt and series compensation, then D-STATCOM, DVR, and UPQC. These are the some of the things we will study in this topic. So already I told you that this power quality problem leads to financial loss. We have financial loss, then loss of production, and waste of raw material. Okay. So these are some of the big problems of power quality. What do you mean by financial? Because if we have loss in the distribution system or power system, I take one example only. So we have losses in the system. Without that, we saw an example that if we compensate the power quality problems, the losses are decreased. Okay, increase of loss means there is financial loss also, because we have to generate more power for the same load. Okay, so we know that we started last time that we have variety of this mitigation techniques. In it we have series of power filters, then we have custom power devices, improved power quality DC converters, and matrix converters, जो हमने last time discuss किया. Okay, now series of power filters, they can be passive or active filters. Okay, passive filters are those which are made using resistance, inductor, and capacitor. Okay, so they are, and in that passive compensation, we can have a shunt compensation or series compensation. Okay, similarly we have active filters also. Okay, they can have a shunt or series, and we have also hybrid filters also. It can be active passive hybrid or active active. Okay, so these are some of the, and we have custom power device, that is active power devices. They are used to mitigate problem in the distribution system. Why custom power devices? Because it is related to customers, near customers. Okay, that's why it is device for customers. So D-STATCOM means distribution static compensator, and DVR, dynamic voltage restorer. It is used to mitigate voltage based problem. D-STATCOM is used to mitigate current based problems. And UPQC, it is used to mitigate both voltage and current based problems in the distribution system. And we have number of improved power quality AC/DC converters, जो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है. जस्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ये क्या करते हैं कि जैसे हमारा रेक्टिफायर था, वो क्या करता है, सोर्स साइड एक तो हार्मोनिक्स करता क्रिएट, और सेकंड जो है
पावर फैक्टर को भी डिटेरियोरेट करता है, हमने कल न्यूमेरिकल भी देखा। तो हम ऐसे कन्वर्टर बनाते हैं जो दोनों काम करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव भी करते हैं और हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करते हैं। सो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज कन्वर्टर्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कन्वर्टर्स। थोड़ा सा हम ज्यादा पैसिव कंपनसेशन के बारे में ज्यादा हमने पढ़ना नहीं है, बस स्टिल मैं आपको एक जो शंट कंपनसेशन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगा। स्पेशली जो हमारे कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, दे प्रोवाइड लीडिंग current, okay, to compensate the lagging current, thereby making unity power factor on the grid side. So what are the passive compensators? They consist of lossless reactive elements such as capacitor and inductor with and without switching device. Switching device हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। So these are the reactive elements, जो passive element होते हैं capacitors और inductors. They can supply or absorb variable or fixed reactive power locally to meet the requirement of power quality problems. देखो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, वो सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर को, जो हमें इंडक्टर जो जिसको जरूरत है उसको वो सप्लाई करता है, देयर बाय यूनिटी पावर फैक्टर हम ग्रिड साइड करते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होता है पावर फैक्टर कैसे क्वेश्चन करते हैं। So improve the power quality of power system by enhancing the efficiency and utilization of equipment in the transmission and distribution system. अब जब पावर फैक्टर करेक्शन करेंगे ओवरऑल क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव। मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में ओनली पावर है, रिएक्टिव पावर को फिर ट्रांसमिट नहीं करना पड़ता है, और पावर फैक्टर डेटरेट होता है तो करंट इंक्रीज होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो ओवरऑल करंट रिड्यूस तो लॉसेस भी रिड्यूस हो गए, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, जो ये फिगर्स है हमारी, दिस इज इंडक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स, टॉरॉयडल, सिलेंड्रिकल, ट्रांसफार्मर टाइप, देन वी हैव कैपेसिटर, या तो कैपेसिटर्स भी कुछ बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स भी हैं, ओके, और ये बड़े कैपेसिटर्स भी हैं, और डिफरेंट रेटिंग बेस्ड अपॉन डिफरेंट, कितना उनको केवीए वीआर रेटिंग कितनी है वो इस पे डिपेंड करते हैं। So they are used in transmission line. Transmission line में तो यूज होते ही हैं to improve voltage profile को improve करने के लिए, transient stability को भी improve करने के लिए, steady state stability, dynamic stability, voltage stability, angle stability, loss reduction, enhance the load ability, improving the transmission capability, damping power system oscillations, mitigating some synchronous resonance and other contingency problems. अब यहाँ पे देखो, हम ये सबस्टेशन एक है, यहाँ पे शंट कैपेसिटर बैंक लगाया पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, ठीक है। ये ये बैंक शंट कैपेसिटर्स हैं, ये सारे ये कैपेसिटर्स हमारे हैं, और ये यूज किए गए शंट में टू मिटिगेट रिएक्टिव पावर प्रॉब्लम, और वी कैन से दैट टू पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज किया गया। इसको बोलते हैं पीएफसी, पावर फैक्टर करेक्शन। सो यू कैन सी, देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर बैंक्स है, ये है, ओके, दीज आर द कैपेसिटर बैंक्स, ओके। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में अगर रिएक्टिव पावर हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे ही इसको कंपनसेट करेंगे। सो पैसिव कंपनसेटर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंप्रूविंग, एक चीज वोल्टेज प्रोफाइल को भी इंप्रूव करते हैं एट पीसीसी, लॉस रिडक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन, लोड बैलेंसिंग, इवन लोड बैलेंसिंग भी करते हैं, न्यूट्रल करंट कंपनसेशन, एंड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स। तो आप ये फिगर्स दे सकते हो, हाउ ये जो यहाँ पे व्हाइट वाले हैं दैट इज कैपेसिटर बैंक से ही हमारे व्हाइट वाले, यहाँ पर तो सिल्वर कलर के हैं, तो दीज आर द कैपेसिटर बैंक्स। यहाँ पे देखो कैपेसिटर स्टैटिक वीआर कंपनसेटर, ये देखो यहाँ पर ये है। एक्चुअली स्टैटिक वीआर कंपनसेटर स्पेशली कहाँ पे यूज होता था, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस लाइन होता है तो लाइन में वी हैव इंपेडेंस इंडक्टर, तो करंट फ्लो होती, ड्रॉप होती जाती वोल्टेज, तो वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए क्या हम रिएक्टिव पावर देते हैं, यार अब्सॉर्ब करें रिएक्टिव पावर, डिपेंड अपॉन कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज की प्रोफाइल को इंप्रूव करते हैं वहां पर टू मिटिगेट रिएक्टिव पावर प्रॉब्लम्स। हाई वोल्टेज पैरेलल कैपेसिटर कंपनसेटर, ये भी हमारा हाई कैपेसिटर, जो हाई वोल्टेज पैरेलल कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाते हैं टू मिटिगेट दीज
वोल्टेज बेस्ड पावर। देखो रिएक्टिव पावर कंपनसेटर, देखो ये इसमें इंडक्टर बेस्ड, टोटल इंडक्टर वाला ये तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन सिस्टम पूरा बनाया है इन्होंने। सिमिलरली एयर कोड सीरीज एंड शंट रिएक्टर, बड़े बड़े रिएक्टर लगाते हैं यहाँ पर, देखो ये एयर कोड है और ये भी बड़े बड़े सबस्टेशन में यूज होते हैं टू मिटिगेट पावर क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब ये देखो यहाँ पर एक some high voltage substation contain large air cooled reactors in the context in large coil. These can be used as a static VR compensator. Static VR compensator वो होते हैं जो हमारी रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करते हैं, तभी VR है ना, VR कंपनसेटर। स्टैटिक क्या है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं। आपको पता है इससे पहले बिफोर दिस स्टैटिक VR कंपनसेटर वी हैव ए रोटेटिंग synchronous compensators होते थे, synchronous machine, they have been used for compensation reactive power। मगर उसमें रोटेटिंग में क्या होती, we have friction, windage loss, रेटिंग कम है, तो we shift to static VR compensator। ओके, this second generation। थर्ड जनरेशन क्या है, एक्टिव पावर, एक्टिव कंपनसेटर्स। ये स्टैटिक है बट पैसिव कंपनसेशन। सो this is the way of adding either capacitance or inductance to electric system depending upon which is needed। या ये कैपेसिटेंस देता है या इंडक्टेंस में, या तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है या अब्सॉर्ब करता है, जैसे रिक्वायरमेंट है। ओके, सो एयर कोर रिएक्टर्स प्रोवाइड इंडक्टेंस, दे आर कैन बी आल्सो यूज अ फिल्टर टू फिल्टर आउट पार्टिकुलर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, और उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। सो पावर कंपनसेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सीरियल कैपेसिटर डिवाइस, ये कैपेसिटर डिवाइस हैं, ठीक है। रेलवे में एक है जो रेलवे है 44 केवी, पर कितने 44 केवी किलो वोल्ट पे काम करते हैं, और इसमें जो रिएक्टिव पावर ये देते हैं 3600 केवीआर, इतने रिएक्टिव पावर तक दे सकते हैं। ओके, सो वी कैन हैव क्लासिफिकेशन पैसिव और शंट जो सीरीज कंपनसेटर है, इट कैन बी शंट, सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। टोपोलॉजी क्या हो सकती है, यहाँ तो शंट में क्या हुआ, पैरेलल में लोड के, या तो सीरीज में लाइन में, या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फेजेस, या तो टू सिंगल फेज सिस्टम, या 3 फेज 3 वायर, या 3 फेज 4 वायर। लाइन के बेस पर भी हो सकता है, जहां सिंगल फेज होगा तो वहां पे 2 वायर सिस्टम होगा। तो रेक्टिव जो हमारे जिस रेक्टिव एलिमेंट जो पैसिव एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी और 3 फेज के लिए ज्यादा होगी। तो ये जो देखो हमारे पास ये है, दिस इज सीरीज कंपनसेटर। देखो यहाँ पर हमारे ग्रिड साइड वोल्टेज है, एंड दिस इज सोर्स इंपेडेंस, एंड दिस इज GL प्लस GB इज लोड, एक्चुअली लोड इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस। अब यहाँ देखो BL है, ये क्या है, एडमिटेंस, रिएक्टिव एडमिटेंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहिए, तो एक्टिव वाला है कंडक्टेंस और एक ससेप्टेंस होता है BL, और इसको मिटिगेट करने के लिए BC को यूज किया सीरीज में। ये कहां यूज होता है सीरीज, टू एलिमिनेट वोल्टेज सैग स्वेल एंड फ्लक्चुएशंस, ठीक है ना। तो इसको इसलिए यूज किया जाता है सीरीज में, टू एलिमिनेट वोल्टेज सैग स्वेल एंड फ्लक्चुएशंस को ये किया जाता है। सिमिलरली वी हैव शंट, अब जो वो BC सीरीज में था, अब ये कहां है, शंट में, और यहाँ पे जो लोड का लैगिंग होगी यहाँ लीडिंग देगा, यहाँ लीडिंग हो गया तो लैगिंग होगा, ठीक है ना। टू रेगुलेट वोल्टेज और पावर फैक्टर करेक्शन यूजिंग रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, ठीक है ना। तो दिस इज शंट कंपनसेशन बट ड्यू टू पैसिव। ओके, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड मींस शंट भी है सीरीज भी है, यहाँ पहले सीरीज हो सकता है बाद में शंट, यहाँ पहले शंट या बाद में सीरीज, तो इन सबको यूज किया जाता है फॉर हाइब्रिड कंपनसेटर बोले जाता है। और सप्लाई बेस्ड सिस्टम 2 वायर 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर। देखो अब हमारे क्या पास 2 वायर पैसिव कंपनसेटर है, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमारा लोड जो है वो लैगिंग है, ठीक है ना, एट द टर्मिनल्स। अब लैगिंग है तो फिर क्या होगा, अब ये लैगिंग लोड है IL, बट हमारा जो कैपेसिटर बैंक लगा है BC, ये 90 डिग्री टू सोर्स वोल्टेज है, VL लोड वोल्टेज। अब ये क्या हो गया 90, हम चाहते हैं सोर्स करंट क्या, IS चाहते हैं ये वाली। अब जो ये होगा सोर्स जो होगा और जो ये कैपेसिटर बैंक होगा वो 90 डिग्री होगा आपस में,
हम क्या क्या चाहेंगे, सोर्स हमें यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सोर्स करंट है इट विल बी ISRS, ठीक है, जो करंट चल रही है, और जे टाइम्स ऑफ जिस सोर्स इंपिडेंस है, ठीक है, जे टाइम IXX हो जाएगा और रिजल्टेंट VS ये होगा। तो VS और IS में ये डेल्टा जो पावर फैक्टर एंगल है, और इसके बेस पर हमने एक कंपनसेटिंग डिवाइस लगाया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग पावर फैक्टर करेक्शन इन द यूजिंग पैसिव एलिमेंट्स। ये आपने पढ़ी तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। और ये देखो 3 वायर पैसिव कंपनसेशन। 3 वायर में क्या हो गया, अगर सीरीज है स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है, सो वी हैव स्टार कनेक्टेड लोड। तो इसमें अब हमें ये लोड, ये हमारा सिस्टम था, 3 फेज सिस्टम, इंडक्टेंसेस और ये हमारे लोड्स। सो अब देखो हमें कंपनसेट करना है, पावर फैक्टर करेक्शन करना है, हम क्या लगाते हैं, कंपनसेट PFCF 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड है, या आफ्टर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, ये देखो ये कनेक्टेड किए हैं YBC इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टू मिटिगेट प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्पेशली फॉर 3 फेज 3 वायर्स। ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं, ओके। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में 3 फेज में भी लगते हैं और उसमें भी लगते हैं। तो सिमिलरली वी हैव वोल्टेज रेगुलेशन आल्सो, हम वोल्टेज को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स। तो 4 वायर पैसिव कंपनसेटर कौन से होते हैं, जहां पे न्यूट्रल भी होता है। अब ये देखो हमारे लोड्स हैं 3। अब ड्यू टू लोड डिफरेंट है, GA GB GC दे आर डिफरेंट कंडक्टेंसेस, और तीनों में डिफरेंट दिस ससेप्टेंस भी है, मींस देयर विल बी डिफरेंट लोड करंट IA AB IC। अब उनको मिटिगेट करने के लिए हमने यूज किए गए हैं ये पैसिव कंपनसेटर्स, ओके। स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड है, उनको यूज किए गए हैं टू मिटिगेट दिस ये सिंगल फेज जो लोड्स हैं, उनकी वजह से जो अनबैलेंस आती है, करंट आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उसकी वजह से अनबैलेंस वोल्टेज हो जाती है। तो क्यों नहीं हम मिटिगेट करेंगे, दिस आर ऑलवेज, दिस इज कन्वेंशनल मेथड्स। पैसिव कंपनसेशन मींस जो है फिक्स कंपनसेशन हो रही है, ठीक है। तो पर फेज का देखो 3 फेज है, पर फेज में दिखाया जाता है कैसे कनेक्ट है एक फेज के लिए, ठीक है। सो एनालिसिस डिजाइन ऑफ शंट कैपेसिटर फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्यों करते हैं, क्या फायदा उसके, हम चाहते हैं लोड के एंड पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मींस जो सोर्स वोल्टेज है वही लोड वोल्टेज है। आज देखो हमारे घरों में क्या वोल्टेज आती है, वी हैव लेस वोल्टेज, जनरेशन कितनी हो रही, 220 वोल्ट एट सोर्स, और हमें मिल कितनी रही है, नॉट मोर देन 200। अब विंटर्स में तो 80 भी पहुंच जाती है वोल्टेज। सो वी नीड टू, व्हाई वी डू जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, अवॉइड वोल्टेज स्वेल्स। तो अचानक कैपेसिटर स्विचिंग हो गया, जब भी स्वेलिंग कब होती है, जब लोड कम होता है, यहाँ स्विचिंग कैपेसिटर स्विचिंग हो गई तो अचानक वोल्टेज स्वेल हो गई, या वोल्टेज सैग्स, कॉमन फीडर फॉल्ट में आ गया। अब सैग आ गया, हम क्या चाहते हैं, लोड पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन करना चाहते हैं, मतलब लोड शुड नॉट बी अफेक्टेड। कंट्रोलिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस काज्ड बाय कस्टमर लोड वेरिएशन, उसको भी करना चाहते हैं। रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल स्विच ऑपरेशन इन लोड टैपिंग ट्रांसफार्मर्स, इनमें भी यूज करना चाहते हैं, क्योंकि लोड टैपिंग ट्रांसफार्मर में वो एक फ्रीक्वेंसी एक स्विचिंग से चलते हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम जो वोल्टेज बेस होता है उसको भी ठीक करना है। एनहांसिंग द लोडेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स especially for improving stability of loads such as induction motors under major disturbances। so ये जो हमारा है, जो हमने मिटिगेट करना है, लेट्स सपोज जो वोल्टेज को रेगुलेट करना है, देखो एडिशनल ससेप्टेंस ऑफ कंपनसेटर BC, ये जो BC यूज किया हमने, लोड क्या विदाउट BC ये लोड था हमारा, लोड ये था, और दिस वाज सोर्स इंपेडेंस एंड दिस इज वोल्टेज। BC फॉर ZVR एट लोड टर्मिनल इज एस्टिमेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं बोलता हूं लोड वोल्टेज शुड बी सेम एज दिस, VL शुड बी सेम एज VS, must be same as VS, so magnitude of VS should be equal to VL।
अब वो कैसे होगा? अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो Vs बाय टोटल इंपीडेंस, कौन सा इंपीडेंस? Vs बाय टोटल इंपीडेंस क्या निकलेगी? करंट की, इनटू वायर, जो हमारा ये टोटल इसमें फाइंड किया हमने, जो वायर क्या है, दिस इज लोड, लोड ससेप्टेंस, लोड एडमिटेंस, ओके, ये एडमिटेंस है, और ये बीसी क्या है हमारा, ये इसका कैपेसिटर बैंक का ससेप्टेंस है, ठीक है। तो उसको यूज करके हमें आपको याद करने की जरूरत है, जैसे आपको बताना चाहता कि यहाँ पे क्योंकि हमने न्यूमेरिकल कुछ करने इसके हैं, बट जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना था कि पैसिव कंपनसेटर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास लोड करंट ये है IL और VL ये है। अब जो IS और IC है उनके बीच में ये एंगल है, ठीक है, प्योरली 90 नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हम मानते हैं कि BC के साथ हमारा जो ये वी हैव दिस, वी हैव आल्सो कंडक्टेंस आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू IS, जो IS करंट चल रही है, अब IS और RS भी उसकी डायरेक्शन में, जो इंपेडेंस सोर्स इंपेडेंस है उसी के डायरेक्शन में 90 डिग्री पर होगा इंडक्टेंस, उसका फेजर डायग्राम, और रिजल्टेंट विल बी VS। तो दिस विल बी VS डेल्टा VL, और ये हमारा VS होगा, और यहां से इन्होंने फाइंड किया है VS विल बी इक्वल टू VL प्लस RS IS प्लस J टाइम्स ऑफ IS एक्सेस। तो ये चीजें, कुछ चीजें फेजर डायग्राम्स हैं, तो जस्ट मैंने आपको बताना था, इसमें ये पढ़ना नहीं हमने, ये वी डोंट नीड टू स्टडी, ये ज्यादा हो जाएगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, दिस इज वीक न्यूमेरिकल, आपको एक सिंगल फेज बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दिखाना चाहता हूं मैं। सो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक सिंगल फेज लोड, हमारे पास एक सिंगल फेज लोड है, ओके। तो जो ये लोड दिया है, मैं आप डायग्राम बनाऊंगा, हमारे पास सिंगल फेज लोड है, इज फेड फ्रॉम AC सप्लाई, ठीक है, एक AC सप्लाई से फेड किया गया है, विद एन इनपुट वोल्टेज भी गिवन है और बेस इंपेडेंस भी गिवन है, ठीक है। अगर एक हम कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, ठीक है ना, अब देखो ये मैं ये सर्किट बनाऊंगा, ये हमारा एक सिस्टम है, एक सिंगल, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, वी हैव सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है, हमारे इंपेडेंस नहीं है लाइन का, ठीक है, लेट्स सपोज, और यहां पे हमें लोड जो दिया है, दिस इज 4 प्लस J पर यूनिट में दिया है, ठीक है, ये पर यूनिट दिया है, और सप्लाई वोल्टेज दी है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और बेस इंपेडेंस जो दिया है, बेस जो इंपेडेंस दिया है, दैट इज गिवन, दैट इज 4.15 ओम, ओके। अब हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलता है इट इज टू बी रियलाइज्ड एज यूनिटी पावर फैक्टर लोड, हम बोलते हैं हमने इसको रियलाइज करना है यूनिटी पावर फैक्टर लोड यूजिंग ए शंट कंपनसेटर, हम एक शंट कंपनसेटर लगाएंगे, ठीक है ना, एक कंपनसेटर लगाएंगे यहां पर, एक शंट कंपनसेटर, पैसिव शंट कंपनसेटर, हम मानते हैं कि सोर्स को दिखेगा ये हमेशा यूनिटी पावर, मतलब VS और IS के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का, इवन दिस इज लैगिंग और लैगिंग। अब देखो प्लस मींस ये लैगिंग लोड है, हियर IL लैग्स VS बाय सम एंगल, ओके, थीटा, बट हमने क्या किया, यहां पे एक लीडिंग करंट दिया, ठीक है, लेट्स IC बोलते हैं इसको, कंपनसेटेड करंट, ठीक है ना, और ये हमारा पास गिवन है। अब ये जो एलिमेंट है इट कैन बी, शंट कंपनसेटर कैन बी LRC, इसने बुक में लिखा है,
कैलकुलेट, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है अब इस न्यूमेरिकल में, वैल्यू ऑफ कंपनसेटर एलिमेंट। ठीक है, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंपनसेटेड लोड। अब देखो जब ये हम इसको यूनिटी पावर फैक्टर इस यूटिलिटी को क्या दिखेगा, दिस यूटिलिटी, इसको लगेगा ये वाला लोड है, ये रेजिस्टिव लोड है। क्यों, हमने कंपनसेट यूनिटी पावर फैक्टर यहां पर हो गया ना, तो ये क्या लगेगा, इसको लगेगा ये रेजिस्टिव लोड है। अब पूरे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जो कंपनसेटेड लोड है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दो पार्ट हमें इसमें करने हैं। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, दिस गिवन वीएस और एफ दिया है हमारे पास, और इवन हमारे पास जेड दिया है, बट दिस इज पर यूनिट। इसको क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई विद इट बेस इंपेडेंस, ठीक है, टू मेक इट ओम में इसको बनाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी आर, आर विल बी 4 into 4.15 which will be equal to 16.6 ohm. Similarly XL, this is 1 XL है, यहाँ पे 1 है ये, so 1 into 4.5 will be 4.15 ohm। ये दो हमारी टर्म निकल गई, मतलब यहाँ पे XL ये है, ठीक है। अब ZL क्या है, अगर ZL बात करें हम, टोटल ZL कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस 16.6 प्लस 4.15 J, इसको कन्वर्ट करो किसमें, पोलर में, सो पोलर विल बी आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम 17.11 एंगल 14.024 डिग्री, एंगल कितना, इतना हो गया। अब मुझे बताओ बिफोर कंपनसेशन, आप देखो दो चीज हो सकती है, विदाउट दिस, विद दिस। तो विदाउट, बिफोर कंपनसेशन, इसको बोलते हैं बिफोर कंपनसेशन, अगर हमने कंपनसेशन नहीं की होती तो सोर्स करंट क्या होगी, आई ओल्ड की बात बोल रहा हूं, व्हाट विल बी सोर्स करंट, दैट विल बी दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस लोड इंपेडेंस, सो वीएस बाय ZL, तो 230 एंगल 0 डिवाइड बाय 17.11 एंगल 14.024, ठीक है। अब आप जब सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड इट विल बिकम 13.44 एंगल माइनस 14.024 डिग्री एम्पियर, ये। अब इसका मतलब नेगेटिव मतलब क्या हुआ, करंट लैग कर रही है, जो आइसो ओल्ड है ये लैग कर रही है वोल्टेज से, दिस एंगल। अगर हमारे पास वोल्टेज ये है, दिस वोल्टेज 13 डिग्री यहां पे होगा लगभग, नहीं सॉरी 13 डिग्री यहां पे होगा, तो ये आगे जाएगा, तो दिस इज ओल्ड करंट। अब मुझे बताओ जब हमारे पास ये ओल्ड करंट है तो इसमें रिएक्टिव करंट कितनी होगी, इसमें आप बता सकते कोई रिएक्टिव करंट, तो दिस विल बी आई ओल्ड इंटू साइन थीटा, एंगल दिया हमारे पास है, ठीक है ना, सो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो दिस विल बी आई ओल्ड इंटू एक्सएल बाय ZL। अगर आपने याद किया बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो साइन थीटा होता है टोटल रिएक्टिव जो रिएक्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस, ठीक है, लाइन का। सो बाय पुटिंग इट ऑल वैल्यूज, सो दिस विल बी आई ओल्ड कितना है 13.44 इनटू एक्सएल कितना है, दिस इज 4.15 डिवाइड बाय 17.1, सो रिएक्टिव जो इसमें वैल्यू आएगी 3.2575 एम्पियर आएगा, ठीक है। सो जब ये रिएक्टिव एलिमेंट, ये हमारा रिएक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, इस लोड करंट में, तो आप बताओ कि कितना
कंपनसेटेड करंट, तो कंपनसेटेड करंट शुड बी दिस वन, क्योंकि जो रेक्टिव एलिमेंट है, अगर जो रेक्टिव एलिमेंट यहां से दे रहे हैं, इतना ही ले रहा है, उतना ही हम यहां इससे इतनी वैल्यू देंगे हम, ठीक है ना। सो ये है वो रिएक्टिव पावर एलिमेंट वैल्यू। ओके, सो ये जो so compensator current will be IC should be equal to IR, that is equal to 3.2575 ampere, ये होनी चाहिए to compensate that reactive current. So अब हमें पता है कि this compensator is actually capacity current, क्योंकि मैंने बोला लैगिंग लोड है, मींस यहां पे एक्चुअली ये R प्लस JL था, एक्चुअली ओमेगा JL एक्चुअली उन्हें जो एक्सेल दिया था, लोड एल दिया था लोड के लिए, इंडक्टर के लिए नहीं, पर आप क्लियर हो गया जब लैगिंग करंट आई, इट मींस इट इज ए इंडक्टिव लोड। तो दिस वी नीड ए कैपेसिटर करंट, लीडिंग करंट होनी चाहिए। सो देयरफॉर ए पार्ट क्या था, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, तो दिस कैपेसिटर सी वैल्यू विल बी आईसी कंपनसेटेड करंट डिवाइड बाय वी डब्ल्यू। ठीक है ना। तो व्हाट इज वी डब्ल्यू, कोई बता सकता है। सो हियर देखो, अब ये पूरा की वी डब्ल्यू, तो क्या होता है ना, ये वोल्टेज फार्मूला मैं दोबारा समझाना चाहता हूं, यहां पर आपको में भी कंफ्यूजन होगी, ये क्या डायरेक्ट क्या सर ने बताया। अब देखो फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IC इंटू XC, तो वी नीड टू फाइंड XC, XC विल बी V बाई IC। तो ये क्या होता है, XC क्या होता है, 1 बाई J ओमेगा C, 1 बाई ओमेगा C बोल सकते हो, J निकाल दो, तो 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू V बाई IC। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड C, C इधर चला जाएगा, so C will be IC divide by ओमेगा इंटू V, ये मैं बात बोल रहा था। तो यहां से ये फार्मूला बना है कि कैपेसिटर करंट कितना होगा। सो दिस इज कैपेसिटर करंट, सो व्हाट इज दिस IC, IC हमने कितना 3.2575 डिवाइड बाय ओमेगा इज 314, 2 पाई f इंटू वोल्टेज इज 230। सो we will get this as, जब हम इसमें सॉल्व करेंगे, इट इज नियरली 45.104 माइक्रोफेरेड, इतना ये आ रहा है कैपेसिटर टू कंपनसेट दिस लोड टू मेक इट यूनिटी पावर फैक्टर। और इतना कैपेसिटर वैल्यू लगाएंगे हम, ये रिएक्टिव पावर को हम मिटिगेट कर सकते हैं। अब जब हमने ये किया, लेट्स सपोज हमने मिटिगेट किया हमने, और हमने बोला कैपेसिटर वैल्यू हमारी कितनी निकली, दैट इज 45 पॉइंट। सो हियर वी गॉट A इज इक्वल टू A पार्ट जो था, C इज इक्वल टू IC बाई V ओमेगा विच इज इक्वल टू 45.104 माइक्रोफेरेड, ये हमारी वैल्यू आई। अब B, अब हमें न्यू, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नया बनाना है, इसके लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, न्यू करंट IS न्यू। IS न्यू क्या होगी, जिसमें IR होगा ही नहीं, IS न्यू वो होगी जिसमें IR नहीं होगा, मींस IS ओल्ड इंटू कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू IS ओल्ड इंटू R बाय ZL। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू एक्टिव कंपोनेंट, इट विल बी ओनली एक्टिव कंपोनेंट IS न्यू, उसमें कोई रिएक्टिव नहीं होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरे वैल्यू को, तो I old I 14 पॉइंट समथिंग था इंटू R वाज 60.6 डिवाइड बाय 17.1 समथिंग विच इज इक्वल टू 13.0394 एमपी, ये हमारी न्यू करंट होगी। पहले कितनी थी 14, आफ्टर कंपनसेशन करंट शुड बी दिस वन, जो RMS कंपोनेंट होगी, RS आफ्टर कंपन, दिस इज करंट आफ्टर कंपनसेशन।
देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस विल बी सोर्स वोल्टेज तो सेम है डिवाइड बाय आईएस न्यू, न्यू करंट जो हमारी यहां फ्लो हो रही है आईएस न्यू. So this will be 230 by 13.0394 which is equal to 17.639 ohm. ये है रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखेगा कि एक यूनिटी पावर फैक्टर लोड है. This is unity power factor load. हुज़ैफा, हुज़ैफा, शायान, शायान बाटे, यस सर. आपको समझ आई इसकी? सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपने वैल्यू ऑफ सी निकाला हमने उसमें आईसी का वैल्यू आईआर के बराबर लिखा, रियल हाँ कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि हाँ कैपेसिटर में दोनों करंट जरूरी मत ना कि रियल पार्ट ऑफ करंट ही फ्लो हो सकती है, उसमें तो नहीं नहीं, कंप्लेक्स ऑफ द आईआर इज करंट. नॉट रियल, आईआर नॉट रियल, ये रिएक्टिव करंट है. अच्छा ठीक. शायद हमने रिएक्टिव करंट, देखो रिएक्टिव करंट का क्या फार्मूला होता है, जब भी रिएक्टिव करंट निकालनी होती है दैट विल बी डीसी करंट है इनटू उसका साइन कंपोनेंट निकालते हैं, और साइन क्या है, एक्सएल बाय जेडएल होता है. ठीक है, इसको क्या, तो वो मैंने फाइंड की, ये हमने बोला अगर ये रिएक्टिव करंट जरूरत है लोड को तो वही कंपनसेटर भी देना चाहिए. सर आपने कहा ना कि जब हमने ZL निकाला वो ऑलरेडी एक इंडक्टिव लोड आया नेगेटिव ऑफ द एंगल, उससे हमें हाँ पता चला ये इंडक्टर ही है, तो उसमें हाँ अब मतलब दोनों कंपोनेंट ऑफ द करंट फ्लो होगी ना, मतलब हमने क्यों हाँ निकाला. दोनों है. अब हमने क्या किया, उस करंट से क्या निकाला, हमने उससे रिएक्टिव करंट निकाला हमने लोड से, और उस रिएक्टिव लोड करंट जो निकाली आईआर है उसको हमने बोला कैपेसिटर ये देना चाहिए, कितनी, इतनी करंट कैपेसिटर भी देना चाहिए. अगर लोड ने रिएक्टिव करंट जितनी ली उतना ही कैपेसिटर भी देना चाहिए. ठीक है ना, दैट्स व्हाई हमने क्या फार्मूला किया, V इज इक्वल टू IC इनटू XC, तो यहां से C निकाला फिर हमने. यू गॉट माय पॉइंट. आप क्या करो ना, अगर आपको मैटलैब आता है सबको, जस्ट गो टू मैटलैब, आप जस्ट ये एक सोर्स डालो उसमें, उसमें ये लोड सेम डिटो लोड डालो आप, ठीक है ना, with this capacitor value you can see that voltage and current are unity power factor. ठीक है ना, आप यहाँ पे करंट भी देख सकते कितनी आरएमएस वैल्यू इसकी, इतनी कितनी, और यहाँ पे कितनी आरएमएस वैल्यू है. ठीक है ना, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी डिड दिस न्यूमेरिकल, और ये बहुत ही कंपनसेटर जो लगता है कैपेसिटर वो हम सीरीज में लगा सकते हैं या जरूरी है पैरेलल में कनेक्ट करना है. नहीं, सीरीज का अपना है. देखो जब भी पावर फैक्टर करेक्शन करनी है ना वो हमें शंट पे लगाना होता है. अगर वोल्टेज को इंप्रूव करना है, सीरीज जैसे ग्रिड साइड वोल्टेज ज्यादा हो रही कम हो रही, तब हम सीरीज में कंपनसेटर लगाते हैं. ठीक है ना, यस सर. जब भी आपको शंट करंट बेस्ड प्रॉब्लम को ठीक करना है तो यू हैव टू गेट इनटू शंट. जब भी आपको वोल्टेज बेस्ड प्रॉब्लम को ठीक करना है स्पेशली ग्रिड साइड से जब आती है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सीरीज में कंपनसेटर लगाते हैं. ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में लिखा है क्या, यूजिंग ए शंट कनेक्टेड लॉसलेस पैसिव एलिमेंट. ठीक है ना, ठीक है सर. वी हैव नाउ, अब देखो एक चीज मुझे बताओ, एक जब हमारी करंट यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, इवन अगर सोर्स इंपीडेंस भी हो गया तो और करंट कम होगी तो इवन ड्रॉप भी कम हो जाएगी, इंपीडेंस सोर्स इंपीडेंस के लॉसेस भी कम हो जाएंगे. ठीक है ना, तो सिमिलरली यू हैव टू डू न्यूमेरिकल, बुक में न्यूमेरिकल दिए हैं आपको 3.3 न्यूमेरिकल करना है आपने. 3.3 आप लिखो, 3.3 आप जो 3.3 एग्जांपल है, ये पावर क्वालिटी बुक है बीम सर की. 3.3 बस एक दो न्यूमेरिकल करने इसके इसमें, क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाना चाहता था कि पैसिव कंपनसेशन क्या है जो आप कर रहे हो कैपिटल बैंक्स में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये चीज है. सिमिलर थ्री फेज में भी होगा तो उसको भी आप देख लेना प्लीज.
तो नेक्स्ट वी विल मूव टू, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल इसमें। अब हमारा क्या हुआ है, एक्टिव शंट कंपनसेशन, ठीक है, जो कस्टम पावर डिवाइस हमने बोले थे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। दिस स्टैटिक कंपनसेटर, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर होता है, इट इज यूज्ड टू मिटिगेट करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टैटिक मीन्स देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट। अब पहले हमने पैसिव कंपनसेशन की, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पैसिव कंपनसेशन, कोई बता सकता है? The biggest problem with the passive compensator is that they are fixed compensation. वहां आप चेंज नहीं, देखो कनेक्ट कर दिया, अगर लोड चेंज हो गया, हमने जैसे डिजाइन अभी 45 माइक्रोफैरेड का किया था 2.3.2 रेक्टिव करंट के लिए, अब करंट इंक्रीज होगी 4 रेक्टिव करंट, मतलब एंगल चेंज हो गया, तो व्हाट फिर क्या होगा? कंपनसेटर तो फिक्स है, तो ही कैन नॉट डू, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर नहीं कर सकता है। So passive elements has a disadvantage that they are fixed compensation. That's why we have shifted to active shunt compensation. अगर लोड चेंज हो गया, ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है विद इन रेंज, मतलब इसका रेंज दिया है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्विचेस। तो ये स्विच बहुत सारे होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, करंट या लीड या लैग प्रोड्यूस करते हैं। So this distribution static compensator is used, and distribution static compensator is always connected at shunt, हमेशा shunt में कनेक्ट होता है। They are parallel to load, distribution static compensation हमेशा parallel to load ही कनेक्ट होता है। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, करंट वोल्टेज बेस्ड करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। द सॉल्यूशन इज कस्टम पावर डिवाइस, जो अभी आपको बताया था कि जितने भी सॉल्यूशन है इनका जो इश्यूज है वोल्टेज करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज है। अब ये हमारा तो ये करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या क्या डिस्ट्रैक्ट हम क्या क्या ठीक कर सकता है, ये पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकता है, इवन वोल्टेज को भी रेगुलेट कर सकता है। हमने बोला करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, बट इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, वोल्टेज को भी रेगुलेट, जब करंट रिड्यूस होगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप कम हो जाएगा, तो वोल्टेज को भी रेगुलेट करता है। अनबैलेंस करंट उसको भी ठीक करता है। लेट्स सपोज 3 फेज लाइन में अनबैलेंस करंट विल बी ऑलवेज इन 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर। फिर एक्सेसिव न्यूट्रल करंट, अगर न्यूट्रल करंट ज्यादा होगी उसको भी मिटिगेट, न्यूट्रल करंट कब आएगी, जब 3 फेज 4 वायर में हमेशा आएगी। तो इन चीजों को वो मिटिगेट करता है डीस्टैटकॉम, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। सो दिस इज 3 फेज 3 वायर। सो यू कैन सी हियर एक 3 फेज है सोर्स इंपेडेंस, और ये देखो एक इन्वर्टर है, देखो आप 6 स्विच इसमें आईजीबीटी बेस है, आप मॉसफेट के भी लगा सकते हो, और दिस इज कैपेसिटर। अब यहां पे एलआर इंडक्टर्स यूज किए गए हैं। इंडक्टर्स हैज बीन यूज्ड टू मिटिगेट, is used to remove switching ripples in current। अब देखो इस इन्वर्टर को हमें स्विचिंग करनी है एट हाई फ्रीक्वेंसी। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करनी है तो ये हो सकता है कि करंट में रिपल्स भी आ सकते हैं। इसमें जो इसमें करंट फ्लो हो रही है एलआर में, जो ये करंट हम कंपनसेटिंग करंट दे रहे हैं शंट में, सो दे क्या कर सकते हैं, वो हमें उस पे रिपल्स भी हो सकते हैं। टू रिमूव स्विचिंग रिपल्स वी हैव क्रिएटेड दिस इंटरफेसिंग इंडक्टेंस एलआर, इसको बोलते हैं इंटरफेसिंग इंडक्टर। सो इंटरफेसिंग इंडक्टर इज यूज्ड टू रिमूव स्विचिंग रिपल्स इन करंट। आफ्टर दैट this RC filter, resistance and capacitor, is used to remove ripples in voltage, और वोल्टेज में रिपल आ गई, ठीक है ना, उनके रिमूव करने के लिए हमें आरसी फिल्टर को यूज करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास 3 फेज 4 वायर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड लोड है, वो है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको मिटिगेट करते हैं यूजिंग डी स्टैटकॉम। एक कंपनसेटर है, डी स्टैटकॉम है, उसको यूज करते हैं। तो अब मैं बता सकता हूं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक कंपनसेटर क्या है। इट इज कंट्रोल्ड रिएक्टिव पावर सोर्स, ठीक है ना। अब ये एनर्जी कहां से लेता है, वो भी ग्रिड से ही लेगा, बट ऐसे काम करेगा, इसको मिटिगेट करेगा, वो हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंट क्लासेस में। सो नाउ दिस डी स्टैटकॉम इज ए मैच्योर टेक्नोलॉजी, ये आज से 10 साल से चल रहा। कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है, उसको रिएक्टिव पावर मींस पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, लोड बैलेंसिंग कंपनसेट करता है, न्यूट्रल करंट को कंपनसेट करता है, हार्मोनिक करंट्स को भी कंपनसेट करता है। सब चीजें एक ही सिस्टम में, एक कंट्रोल पावर सोर्स है, उसमें सारी चीज। जबकि कैपेसिटर क्या है, हर एक काम के लिए आपको इंडिविजुअली डिजाइन करना था उसको, जो पैसिव कंपनसेशन थी। अब ये तो डायरेक्ट उसका काम करता है, इनडायरेक्टली क्या करेगा, अब जब ये ठीक करेगा उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज भी रेगुलेट होगी जो हमारी। ये फ्लिकर्स को भी कम कर लेता है, जब करंट को ठीक करता है उसकी फ्लिकर्स उसमें भी, टू इंप्रूव वोल्टेज बैलेंस इन द थ्री फेज। और देखो अनबैलेंस लोड है, उसको हमने क्या किया, बैलेंस किया, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा सर्किट है, ये जो सर्किट है, अगर तीनों करंट्स अनबैलेंस होंगे और ड्रॉप क्या अनइक्वल होंगे, तो देयर विल बी अनइक्वल वोल्टेजेस। अब क्या कर कंपनसेटर क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि हमेशा इस साइड क्या होगा, बैलेंस करंट होगी, इवन लोड और अनबैलेंस। ओके, सो डेवलपमेंट क्या है, बहुत सारी कन्फिगरेशंस आई, कंट्रोल स्ट्रेटजीज आई, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आए, बहुत सारी चीजें इसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई। ये हमारा है सीमेंस का, ये एक यूएसए में इन्होंने डी स्टैटकॉम बनाया है। इट इज फॉर 23 किलो वोल्ट, बट इसकी जो एमवीए रेटिंग है दैट इज प्लस माइनस 1 एमवीए, इतना वो कंपनसेट करता है रिएक्टिव पावर को, इतनी रेंज इसकी, ठीक है ना। मतलब ये 50 को भी कर सकता है, 100 को भी कर सकता है, माइनस को भी कर सकता है, 20 को भी, और ऐसे ही कंपनसेट करता है काम करने। सो दिस इज ए डी स्टैटकॉम। ये प्योर वेव कंपनी है जो डी स्टैटकॉम बनाती है, तो वो यूज करती है डी स्टैटकॉम टू कंट्रोल रिएक्टिव बैंक्स और एक्सटर्नल स्विच कैपेसिटर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्योर वेव। क्लासिफिकेशन, दे कैन बी कन्वर्टर टाइप। अब देखो करंट सोर्स कन्वर्टर, ब्रिज कन्वर्टर, या तो वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इन्वर्टर के इनपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट होती है। करंट सोर्स में क्या होती है, इनपुट साइड पे जो डीसी साइड पे करंट कांस्टेंट होती है। टोपोलॉजी बेस क्या है, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर्स, अरेंजमेंट ऑफ वीएससीज या फेजेस, सिंगल फेज, 3 वायर, 3 फेज, 3 फेज, 4 वायर, ठीक है। तो दिस इज करंट फेड टाइप ऑफ डी स्टैटकॉम। करंट फेड टाइप ऑफ जो डी स्टैटकॉम है, इसमें जो ये डी स्टैटकॉम है, इन दिस इसमें क्या होता है कि एक डायोड होता है इसके सीरीज में, जो स्विच के सीरीज में डायोड होता है। अब मैंने एक चीज ये बोला, एक तो ये डायोड होता है, सेकंड चीज है, आप देखो यहाँ पे पहले इंडक्टर था मैंने बोला था, और यहाँ पे कैपेसिटर। जब भी करंट सोर्स कन्वर्टर होगा उसको आगे जो शंट में कैपेसिटर लगाते हैं वोल्टेज के रिपल्स को रिमूव करने के, और यहाँ पे जो कैपेसिटर होता था एसी साइड, वहां पे इंडक्टर लगाते हैं टू मेक इट कांस्टेंट। सो self supporting DC bus with large, ये जो in this diode is implemented in series with IGBT for reverse voltage blocking capability। और reverse voltage blocking capability करनी है तो we need to connect a diode, बट ये रिलायबल होता है, हाई स्विचिंग लॉस, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि लॉस क्यों ज्यादा, अब डायोड भी हमेशा कंडक्ट कर रहा है, जब स्विच कंडक्ट कर रहा है डायोड भी कंडक्ट, मींस स्विचिंग लॉसेस भी बहुत ज्यादा है। अब हाई रेटिंग के लिए डिफिकल्ट है डिजाइन करना, क्योंकि इसमें इंडक्टर है,
तो उससे साइज भी बड़ा हो जाता है, तो फॉर हाई रेटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। वेयर एज वोल्टेज फेड टाइप, जहां पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, मतलब यहाँ पे डीसी साइड वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसमें क्या सेल्फ सपोर्टिंग डीसी बस होती है विद लार्ज डीसी बस कैपेसिटर। ये लाइट होता है सिस्टम, चीप होता है ये सिस्टम, और एक्सपेंडेबल टू मल्टी लेवल एंड मल्टी स्टेप। इस जो ये वोल्टेज फेड टाइप लोड, ये लार्ज स्केल के लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे हैव लो स्विचिंग लॉस। व्हाई? अब देखो यहाँ पे डायोड और स्विच जो है वो पैरेलल में है, बेस्ड अपॉन देयर वर्क। जब करंट फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर होगा तो इट विल बी थ्रू स्विच, जब लोअर टू अप होगा देन इट विल बी थ्रू डायोड, ठीक है। तो लॉसेस विल बी रिड्यूस। तो ये है हमारे जो कन्वर्टर की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कन्वर्टर, दैट इज वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एंड करंट सोर्स कन्वर्टर, ओके। सप्लाई बेस्ड सिस्टम, अब देखो सिंगल फेज हो सकता है, ओके, वी कैन हैव सिंगल फेज विद करंट सोर्स। देखो यहाँ करंट सोर्स, इंडक्टर को हमें लगाया है सीरीज में, इंडक्टर को हमें लगाया है डीसी साइड, ओके, 4 स्विच से इंडक्टर को हमने लगाया है टू मेक करंट कांस्टेंट। यहाँ पे वोल्टेज टाइप है सिंगल फेज में विद वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, यहाँ पे क्या लगाया है, कैपेसिटर हमने लगाया है, और ये सिंगल फेज टोपोलॉजी। और 3 फेज में बहुत सारी है, नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, 3 लेग, 2 लेग वीएससी विद सेपरेट कैपेसिटर्स, 3 सिंगल फेज, डेल्टा कनेक्टेड, ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस इसमें है, बट वी विल गो फॉर ओनली 1 3 लेग वीएससी पे हम मोस्टली इस पे हम एनालिसिस करेंगे, दैट इज 3 फेज 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी तक आपको मैंने समझाया इसके बारे में। और दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डीसी बस कैपेसिटर्स, ठीक है। एंड मैंने अभी बताया कि दिस इंटरफेसिंग इंडक्टर इज यूज्ड टू रिमूव करंट बेस्ड रिपल्स, and whereas this RC filter is used to remove voltage based ripples and harmonics, okay, this 3 phase 3 wire। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको।